Hello people, this is Riya Mehta, and as you all know, it's been a while since I made any videos, and there were some complications and my life was going really low in the point where I stopped making any videos at all, and I stopped posting also on my Instagram and everything like that. I'll maybe not do a story time about that, but well, hey, I'm back. And in this video I would like to share my journey, how I went through college, how I got into my studies, whatever I'm pursuing right now, and from the moment I opted the course in my 11th and 12th in CBSE till now, where I am in my third year of college, that is about to end. And so yeah, let's get right into the video. So it all started when I was a kid. I wanted to be, everybody has those ambitions that I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a teacher, etc, etc. But nobody takes that seriously, because as we grow older we get different perspective and different experiences from everybody. So finally we get some maturity, and then we decide that we want to be this, we want to be that. So I was very clear since the beginning that I want to be a doctor, or I want to be in something like medical field. I just want to be in the hospital working anyway. I just want to get there. So it is a really funny thing. Like when I was little, I used to, when people go to get their blood test done, तो वहाँ पे you get those syringes and those gloves. So every time I used to go there, I used to take one syringe and gloves, and I'll be really happy coming home and playing doctor with those real things. And another thing that I was about in my 6th class, I guess, or I don't know, 7th, when I ordered my first stethoscope. I just really wanted to be a doctor really bad. So I ordered a stethoscope off Amazon, and then when it arrived, I used to sleep with it, eat with it, and just play with it every hour of the day. I was a really good student in school. Like till 8th, I've been 3rd or 4th position in the whole class, and I've been really good in my studies. My parents were proud. There's a board जो PTMs वगैरह में result day पे reception के बाहर एक board लगता है, वहाँ पे you used to get their names and every subject scholar. So my name used to always be there, like class this, class X students, scholar students, toppers, whatever, it was there. So until I got into 9th, I was really clear that I wanted to be a doctor. But as soon as I crossed 9th, I got some mental maturity, and then socializing a bit, just helps you understand the society a little better and what is good for you, how's the competition, and everything like that. In 9th, my grades really dropped down. Like if I was a student who used to get 90% all the time, I was a student in 9th who got 60%. I was really ashamed of myself. What did I get into? मैंने क्या कर दिया? ऐसे सब thoughts चल रहे थे. काफ़ी सारी डांट भी पड़ी घर से. डांट तो क्या, it was a silent treatment, you know how Indian households are. Silent treatment मिला, and listening from all the relatives. ये एक्सपेक्टेड नहीं था तुझसे, यू कुड डू अ लॉट बेटर, क्या हो गया तेरे को, तूने पढ़ा नहीं, ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं. बट देन आई गॉट इनटू 10th, एंड ऑफ कोर्स सोशलाइजिंग के साथ साथ मैंने थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट किया, बिकॉज स्टार्टिंग से ही 10th की स्टार्ट होते ही यू हैव टू लिसन. बोर्ड्स हैं, इट्स अ लाइक वेरी ह्यूज थिंग फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ CBSE कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है. 10th तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा, तो 10th तुम्हारा डिसाइड करेगा तुम आगे क्या करोगे, तुम कितने केपेबल हो, तुम्हारी स्ट्रीम क्या होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. सो 10th में मैंने काफ़ी फोकस किया, एंड देन आई गॉट टू नो माई सेल्फ कि मुझे क्या पसंद है. Socializing helped me realize that a lot of things make me happy, not just being a doctor, but my English was really good, my social studies, my French was really good. So I wanted to do something that would require more of creative knowledge and less of these practical 9 to 5 corporate maybe jobs kind of thing. I was really terrified of that since the beginning कि मेरे को job तो नहीं करनी है. One thing for me is for sure that I hated commerce, because maths तो वैसे ही not a cup of my tea. And second thing, I hated to be an engineer, because मेरी फैमिली में वी हैव अ businessman, we have a person who is doing a private job, he's an engineer, my chachu, and we have one person who is doing the government job, and
these are my family from my father's paternal side, so not fathers but my paternal side. So yeah, I've seen all of these in different sectors, so it really helped me understand कि मेरे को क्या करना है. I was pretty sure कि मेरे को engineer तो नहीं बनना है. I might do a business because that requires creativity, or I might do something that would help me to get into creative field because my English is really good. I could do English honors, something like that, or which would really enhance what I already have. So मेरी skills काफ़ी अच्छी थी. My learning power, not rote learning but understanding power. Practical knowledge zero थी. जैसे practice चाहिए होती है maths में, science में, वो अच्छी नहीं थी. But in biology I did good. In social science I did good. In French I did good. In English I was a topper. वो तो बात ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दो. फिर उसके बाद I got into 11th and I was about to choose humanities when your Indian parents are like तुम जो करना है करो, हम कुछ नहीं रोक रहे, बट याद रखियो तेरा गोल था you have to be a doctor. So I was like ठीक है देखते हैं. एंड साइड बाय साइड मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ नहीं ले सकती बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ लेके आई वांटेड टू डू इंग्लिश ऑनर्स, तो मैंने कहा अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ नहीं ले रही हूँ सो आई वांट टू डू समथिंग इन डॉक्टर कह रहे डॉक्टर की तरह पढ़ाई तो उससे होगी नहीं, बट यू हैव टू चूज़ PCM या PCB. तो उनको पता था इंजीनियर बनने वाली तो मैं हूँ नहीं, तो PCB वॉज समथिंग दैट आई चोज़. फिर उसके बाद मेरी बात हुई कि क्या करना है आफ्टर 12th, क्योंकि आफ्टर यू गेट इन टू 10th तुम्हारे घर वालों से पहली बात हो जाती है कि 12th के बाद क्या करना है. ऑन दैट बेसिस यू चूज़ व्हाट यू हैव द स्ट्रीम इन 11th एंड 12th. तो मेरे घर वालों से बात हुई एंड दे वर लाइक हाँ ठीक है, अगर तेरे को मेडिकल लाइन में जाना है यू कैन चूज़ PCB एंड तू अपने गोल से मत हट. यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, ह्यूमैनिटीज़ मत चूज़ करियो. और कॉमर्स में तो वैसे ही मेरे को इंटरेस्ट नहीं था और PCM वॉज नॉट अ कप ऑफ माई टी. सो ये सब करा मैंने. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 11th में कोरोना चल रहा था, सो वी हैड ऑनलाइन स्कूल एंड क्लासेस एंड सारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हुए थे. Meanwhile, so one of my relative from Canada, उनसे बात हुई मेरे बाबा की एंड दे गेव अ सजेशन कि आप इसका कनाडा में एडमिशन करवा दो, विल टेक केयर ऑफ हर एंड शी विल स्टे विद अस, फूड एंड स्टेइंग, रेंट एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. सो वी लाइक वाओ गुड आइडिया, नाइस, सो हम लोग ये कर सकते हैं. सो फ्रॉम दैट मोमेंट वी वर मीटिंग ऑल दी एजेंट्स जो ट्रांसफ़र करवाते हैं फ्रॉम दिल्ली टू कैनेडा एंड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में करना है, कौन सा कोर्स करना है. सो वी वर गिवन दिस सजेशन कि सबसे पहले तुम 2 साल की एक एसोसिएट डिग्री होती है वो कर लो एंड इन द सेम फील्ड लाइक साइंस की फील्ड में, बायो की फील्ड में, बायोटेक वगैरह कुछ भी फील्ड में कर सकते हो. एंड देन यू कैन ट्रांसफर योर क्रेडिट्स फ्रॉम दैट कोर्स टू यूनिवर्सिटी. जहाँ पे तुम्हारा पैसा लगना था 4 साल की यूनिवर्सिटी का, अगर तुम नर्सिंग करते हो, मेरा मेन पर्पज़ था वहाँ पे नर्सिंग में जाने का, तो जो तुम्हारा 4 साल का पैसा वहाँ पे नर्सिंग में लगना था, सपोज आई एम चूजिंग द सिटी, सपोज आई एम चूजिंग अ यूनिवर्सिटी इन वैंकूवर में, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली तो यूनिवर्सिटी का पैसा हमेशा डबल होता है. बट दे सजेस्टेड कि आप एसोसिएट डिग्री किसी कॉलेज से कर लो एंड देन गेट योर क्रेडिट्स ट्रांसफर्ड, और फिर उसके बाद तुम डिग्री अपनी परस्यू कर सकते हो फ्रॉम 2 टू सीधा 3rd ईयर में इन द यूनिवर्सिटी. 3rd एंड 4th फ्रॉम द यूनिवर्सिटी तुम करोगे एंड इट बी फाइनेंशियली बेटर फॉर यू. सो वी वर लाइक फाइन, विल डू दैट. सो हमने सब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. मैंने आइल्स दिया एंड आई गॉट माई आइल्स रिजल्ट एंड उसके बाद मेरा एडमिशन वॉज डन इन सम यूनिवर्सिटी, सम कॉलेज, कौन सा कॉलेज था या पता नहीं, यूनिवर्सिटी थी. एंड आई स्टिल हैव दैट ऑफर लेटर विद मी इन माई मेल कि हाँ यू हैव बिन एक्सेप्टेड एज दिस एंड पे योर ट्यूशन फीस फॉर द September intake. एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि यार फाइनली मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है एंड आई बी जॉइनिंग दिस कोर्स एंड कनाडा में जाऊँगी रहूँगी. एंड उसके बाद का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. कनाडा में एक्चुअली एक तो क्या था कि मेरे को चाहिए था मैथ्स फॉर नर्सिंग, तो उन्होंने कहा मैथ्स होनी वेरी कंपल्सरी एंड आई हैड PCB दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. तो मैथ्स मैंने मिड सेमेस्टर लिया था 12th में एंड देन आई हैड PCMB का कॉम्बिनेशन. सो लाइक 6 सब्जेक्ट्स हो गए थे and I scored a good amount, like good marks of about 89% in 12th. एंड उसके बाद मेरा आगे क्या सीन रहा कि IELTS का रिज़ल्ट आ गया, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया एंड देन सिनेमैटिक सीन, तुम ना पापा की तबीयत ख़राब हो गई. अभी थोड़ा मजाक सोच रहा है बट उस टाइम पे वी वर वेरी स्कैर्ड बिकॉज जो पल्स हमारी जो हार्ट रेट होती है दैट शुड बी 72 एंड 100 तक नॉर्मल मानी जाती है एंड इट इज़ अबव
if above 110 or 120 then it's a sign of horror. So पापा की पल्स जो थी वो अराउंड 200 पहुंच गई थी एंड दैट वाज नॉट गुड. पापा वाज इन द कार्डियक ICU पार्ट एंड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई एंड एवरीबडी वॉज ब्लेमिंग मी इन द रिलेटिव्स कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, तूने इतनी रट लगाई थी जाने के लिए कनाडा एंड पैसे बहुत लग रहे थे एंड ब्ला ब्ला एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. एंड बीइंग अ चाइल्ड आई कुड नॉट हैंडल दैट कि यार मेरी वजह से ये सब हो रहा है. ऑल्दो उनका अलग था, मैंने उनकी बातों को माइंड किया बट वो पापा से अलग रखा कि पापा को नहीं बोलना है सब. सो पापा वाज लाइक व्हेन ही वाज इन द ICU एंड आई वेंट टू मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही सेड कि तू मेरा घर का बड़ा बेटा है, आई वोंट लेट यू गो, तू मेरे साथ ही रहेगी. एंड उस टाइम आई गॉट सो इमोशनल बट आई कुडंट क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम. बट एवरीथिंग उस टाइम पे सीम्ड सो मेस्ड अप कि यार now my career has to shift at such an immense level that maybe I won't be able to handle it. So काफ़ी चीज़ें हुई एंड देन जब पापा फाइनली बाहर आए, इट वॉज माई 12th का रिज़ल्ट जब ये सब हुआ और एक्सेप्टेंस लेटर किया, ऑलमोस्ट 1 to 2 months की बात थी. एंड आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ 3 to 4 months विद मी बिफोर मेरा कोई भी कॉलेज स्टार्ट होता इंडिया में और कनाडा में कोई भी कॉलेज स्टार्ट होता. तो मेरे पास गुड अमाउंट ऑफ 3 to 4 months थे. सो इन बिटवीन आइल्स तो अब मेरा वेस्ट हो ही गया था क्योंकि अब आइल्स की कोई ज़रूरत थी नहीं. एंड दिल्ली में नर्सिंग का बोला पापा को, पापा कहते कि दिल्ली में नर्सिंग की कोई वैल्यू है नहीं, इंडिया में नर्सिस की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है एंड यू हैव टू डू BTech हियर. So I was like, BTech? I hate engineering, I can't do it. And then I was advised by everybody कि हाँ, engineering is a good thing and if you go into it, it'll be very good and nurses से तो ज़्यादा ही पैसे होते हैं. So I was like, fine, I cannot revolt पापा अभी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़े टाइम पहले ही ख़राब हुई थी and you never know, मेरी वजह से अगर फिर कुछ हुआ and everybody blames me, I won't be able to handle it. So I agreed to him कि I'll do BTech here. एंड ऑल्दो मैंने नीट भी दिया था यहाँ पे एंड JEE तो दिया नहीं था, नीट दिया था. नीट में ऑफ कोर्स तैयारी नहीं करो, अगर तुम ड्रॉप ईयर ना लो तो यू डू नॉट गेट दोज गुड मार्क्स कि तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाओ. सो मैं एक काउंसलर के पास गई जो रिकमेंड किया था मेरे एक फ्रेंड ने. सो उस फ्रेंड का एक्चुअली IIT में एडमिशन हुआ था. सो व्हेन आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है तो ही सेड कि मेरा एक काउंसलर है, ही विल डू वेरी गुड फॉर यू एंड ही विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑप्शंस. सो ही सजेस्टेड द फर्स्ट थिंग दैट इज़ शारदा यूनिवर्सिटी एंड आई वाज लाइक प्राइवेट है, ठीक है चलो कोई बात नहीं. पापा कह रहे हैं कि अभी ही टोल्ड मी, द काउंसलर टोल्ड मी कि सारी जगह पे एप्लीकेशंस बंद हो गई एडमिशन के. सो यू वोंट बी एबल टू गेट एडमिशन एनीवेयर बट एक यूनिवर्सिटी है शारदा यूनिवर्सिटी दैट स्टिल एक्सेप्टिंग, तो आप वहाँ पे जा सकते हो. अदरवाइज देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो बट दे आर नॉट एज गुड एज दैट, द ब्रांड नेम शारदा का. So then my father agreed and my mother was still fighting that I want her to go into MBBS or BDS or I want her to do the nursing, anything in the hospital part. She thought just like me, what would I be in happy for? क्योंकि वो तो starting से ही बोल रही थी that it's your ambition to be a doctor or in healthcare sector. तो she was still fighting कि यार BTech में मत करवाओ please. एंड देन BTech में एडमिशन हो जाता है. माई फादर इज़ रियली हैप्पी ऑल्दो माई मदर इज़ रियली सैड कि यहाँ पे जा रही है. एंड देन फॉर द फर्स्ट time when I got into college and I saw that I'm going into this building that is called the SSCT, the Sharda School of Engineering and Technology, I was very, I had that major setback कि क्या हो रहा है यार, this is not me, this is not where I belong. But then I saw my father, I was like, cinematic story लग रही है, ठीक है पापा को चाहिए कर लेंगे, क्या हो गया फिर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. And that ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा got me 3 years into BTech. So the फर्स्ट सेमेस्टर आई वुड से मैं बहुत पजल थी. मेरे को पापा ने एक मैसेज किया था दैट इज़ AIML इन इंजीनियरिंग ले ले, बिकॉज उन्होंने किसी फ्रेंड से बात करी थी और उनके फ्रेंड का बेटा ये कर रहा था, ही वॉज ऑफ माई एज एंड ही सेड कि AIML में सबसे ज़्यादा स्कोप है. ही वॉज, तो माई फादर टेक्स्टेड मी कि लाइक AIML ले ले एंड आई जस्ट सेड ओके आई विल टेक इट. और तब आई टुक AIML विद इंजीनियरिंग द स्पेशलाइजेशन. बट पढ़ा तो मुझसे सब जाता है, अगर मैं अपना माइंड किसी चीज़ में लगा लूँ तो मैं पढ़ सब सकती हूँ एंड आई कुड स्कोर गुड मार्क्स. बट मेरा माइंड अलाउ नहीं करता है कि यार तू इस चीज़ को पढ़. लाइक मैथ्स भी मुझसे हो जाती बट मेरा माइंड अलाउ नहीं करता है. एंड इंजीनियरिंग इट वॉज ऑल मैथ्स एंड आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ मैथ्स बट आई एम स्कैर्ड ऑफ डूइंग समथिंग आई डोंट लाइक, डूइंग समथिंग आई एम नॉट हैप्पी. ये सब हुआ एंड देन
देयर वाज दिस वन डे दैट आई थॉट कि अब नहीं, मुझे ये एक हफ्ते की क्लासेस ले लिए, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम शिफ्टिंग टू नर्सिंग. फिर माई फादर टोल्ड मी दैट नहीं, यू विल नॉट डू नर्सिंग, इसका स्कोप नहीं है, ब्ला ब्ला. सो आई स्टेड देयर. आई सेड कि चलो ये मैं छोड़ देती हूँ, इट बी लेस ऑफ अ बर्डन, क्योंकि मुझसे कोप अप नहीं करा जा रहा था स्टडीज़ को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. सोचो, यू आर फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, यू आर अ मास्टर, यू नो माई मदर स्टिल डज दिस. अगर कोई डॉक्टर होता है और मैं उनसे कुछ सवाल पूछती हूँ एंड देन आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड आई पुट सम 5-4 बायोलॉजी के टर्म्स, जैसे कभी ब्लड टेस्ट होता है, ईओसिनोफिल्स हो गए, ये हो या वो हो गया, TLC वगैरह वगैरह. तो ऐसे कभी मैं कोई क्वेश्चंस पूछती हूँ, माई मदर गेट्स वेरी प्राउड एंड शी लुक्स एट मी लाइक शी इज़ अ बायोलॉजी स्टूडेंट. मैंने कहा मॉम, नाउ आई एम इन 3rd year ऑफ माई इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर, प्लीज स्टॉप इट. सो मतलब शी स्टिल ट्रीट्स मी लाइक आई एम अ डॉक्टर. कुछ भी दिक्कत होती है, रिया देखियो इसका मतलब क्या है, कुछ भी रिपोर्ट्स देखनी होती है, रिया प्लीज कम एंड टेल मी ये क्या है. सो शी गेट्स वेरी प्राउड व्हेन आई टेल कि ये चीज़ है, ये चीज़ है. इफ़ आई टेल एनीथिंग, एक्सप्लेन एनीथिंग बायो रिलेटेड और मेडिकल फील्ड रिलेटेड, सो शी गेट्स वेरी वेरी एक्साइटेड. बट या, so that's another story. Coming back to the point, when I first got into the semester, so मैं शिफ्ट कर रही थी नर्सिंग में, वो करा नहीं, एंड देन मैंने कहा यार कोर में शिफ्ट कर लेती हूँ, आई वॉन्ट टेक द स्पेशलाइजेशन, ताकि मेरे पे ज़्यादा बर्डन आए. सो दैट नॉट रिजल्ट गुड, बिकॉज एक बार तुम शायद यूनिवर्सिटी में आ जाओ, यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, और तुम्हें भागते रहना होगा, बट तुम्हारा काम नहीं होगा. सो मैंने भी फिर 1-2 दिन करा, भागी इधर उधर पूरी क्लासेस छोड़ के, एंड नहीं हुआ एट लास्ट. बट देन मैंने कहा चलो ठीक है ना, सेटअप. बट देन आई थॉट कि मैं थोड़ा सेटलअप हो जाती हूँ, अब करना यही है तो सेटलअप करके आई विल बी फाइन. एंड द डे आई गॉट माई फर्स्ट ID कार्ड एंड अंडर माई नेम इट वॉज रिटन शारदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई क्राइड द होल डे. मेरे को नहीं समझ आ रहा था यार, मेरा नाम नर्सिंग में, BDS में या फिर MBBS में ना हो के नर्सिंग, वो ऐसी फील्ड में आ रहा है जहाँ पे आई हेट द मोस्ट द इंजीनियरिंग पार्ट. बट ठीक है, समहाउ आई कोप अप. और इनफैक्ट टिल दिस डे आई थिंक कि मैं एक बार मेरी BTech कंप्लीट हो जाए, आई अप्लाई फॉर नर्सिंग, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में चली जाऊँगी, तो क्या हो गया, थोड़ा साल ही तो वेस्ट होंगे मेरे और. बट आई डू समथिंग दैट आई लव. कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, बट जो भी है, आई एम स्टिल कोपिंग अप विद BTech. एंड राइट नाउ आई एम इन 3rd year. आई बिन डूइंग ग्रेट, क्योंकि मैंने ये बना लिया था कि यही करना, अब इसके आगे और कोई पॉइंट नहीं है. बट आई बिन डूइंग ग्रेट, एंड आई स्टिल लुक फॉर साइंस फ्रॉम यूनिवर्स की इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, लाइक इफ़ इट इज़ मेंट फॉर मी, मैं यही करूँ तो मेरे लिए बेटर है, या फिर मैं किसी क्रिएटिव लाइन में जाऊँ, या फिर मैं किसी बिजनेस में जाऊँ, या मैं किसी हेल्थ के सेक्टर में जाऊँ. बट ठीक है, जो है चल रहा है. ऑल्दो कोडिंग मुझसे अभी भी होती नहीं है, ठीक है, हो जाएगी. बट दिस वॉज माई जर्नी टिल नाउ. इफ़ it helps you with anything, I know it's very confusing, it doesn't help you, but एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, please do what you love, because if you'll end up like me, not everybody is as smart as me that अगर अपना मन लगा लो तो कर सकते हो. You can do it as well, but जब तक तुम्हारा दिल ना लगे उस चीज़ में, तुम्हारा उस कोर्स में तुम्हारा मन ना लगे, यू डू नॉट लव वॉट यू डू, यू डू नॉट लव वॉट यू स्टडी, यू डू नॉट हैव द क्यूरियोसिटी कि यार इसके बाद क्या होगा, आई नीड टू स्टडी, आई वॉन्ट टू डू इट ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ इट, तब तक वो कोर्स मत करो प्लीज़. आई वुड सजेस्ट दैट. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.